Ayushi, any doubts? No? So let's start with the social media marketing today. Okay. सोशल मीडिया मार्केटिंग में बेसिकली कैसे फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर हम एड्स रन कर सकते हैं वो हम देखेंगे. मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. ओके, क्रिएट अ पेज, फेसबुक पेज. ओके, क्लिक ऑन create page option. Okay, we cannot run ad campaigns on personal profile. Okay, क्योंकि uh, according to Facebook we cannot advertise a, uh, advertise people. Okay, so for creating ads, for running ads, we need to create a page, separate business page, or we have to switch our personal account into professional account. Okay, दो ही ऑप्शंस है. या तो प्रोफेशनल अकाउंट में हमारे अकाउंट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर हमें कोई सेपरेट बिजनेस पेज क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, so let's see how to create a business page. You just need to go to this menu section, and here you will get create page option. You have to fill up all the entries that it asks about your business, like your page name, in which category your business lies. Okay, and the bio will be the description of your business. Okay, so you have to fill in all the necessary details. Okay, you have to update profile picture also, cover photo also you have to update, because what will happen if you leave it blank, it will not look authentic. Okay, your page will not look authentic, and it will certainly impact the traffic on your page, right? So it is very very important to fill in all the details. Okay, but it is recommended to fill the entries related to your business only. Okay, don't go for any personal details here. Okay, यदि आपके पास बिजनेस ईमेल आईडी है, बिजनेस फोन नंबर है, तो वो आप यहाँ पर फिलअप कीजिए. पर्सनल फोन नंबर या पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पर नहीं फिल कीजिए आप. ठीक है, यदि बिजनेस पर्पसेस को यूज कर रहे हैं. ठीक है, या फिर जो भी नंबर आप यूज करते हैं उसके लिए वो आप यूज कीजिए. ठीक है, तो मैं एक पेज बता देती हूँ जहाँ पर आपको ऑलरेडी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और हम उस पर कैसे फ्री करेंगे सारी एंट्री. सो this is the page. ठीक है, now from here you can update your profile picture. You can add your cover photo from here. ठीक है, और from here you can post anything that you want. You can create a welcome post for your no visitors. ठीक है, और जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट है, इमेजेस है, वीडियोस है, वो रील्स है, वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन इवन schedule your post in advance through Meta Business Suite. Okay, use relevant hashtags for your post, so that hashtags works like keywords only, right? So use relevant heat, so relevant hashtags, so that your post will reach to the relevant audience. ठीक है, after that, how to create a ad campaign on Facebook. Let's see that. For that, we need to click on Ad Center, and in the Ad Center, click on Advertise. Here we have three options. ठीक है, get started with the automated ads, create new ad, and boost a post. अब इन तीनों में क्या difference है? Automated ads are these ads. In this ads we have to fill in the details related to our business. Okay, and Facebook itself will create an ad for us. Okay, next type of ad is create new ad. Okay, so this type of ad we need to create the ad from scratch by ourselves. Okay, and third one is a boost post option. So in the boost post option, you will boost a post that is already no published on your page. ठीक है, जैसे आपके पेज पर कोई भी पोस्ट है,
यू वांट टू इंक्रीज एंगेजमेंट ऑन दैट पोस्ट, ठीक है, लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स, जो भी आपको अपने पोस्ट पर इंक्रीज करना है, उसके लिए आप बूस्ट पोस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करते हो, ठीक है। तो हम तीनों टाइप के एड्स एक बार देख लेते हैं। ये जो है क्रिएट न्यू एड, ये स्क्रैच से हम क्रिएट करते हैं। ये दोनों सेम इसके जैसे ही रहेंगे, बस इसमें हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे, तो मैं इसी का आपको एग्जांपल बताती हूँ। Rest of the two you have to try by yourself. If you face any problem, you can ask me. Okay. So here you have to decide um, which decide the goal for your ad campaign. Okay. So goal यहाँ पर ऑप्शन है ऑटोमेटिक का। So Facebook will automatically select a relevant goal based on your settings, or you can select by yourself. So we'll click on change, and इसमें से जो भी गोल आप रखना चाहते हो, grow your customer base, get more messages, get more page likes, get more calls, और get more website visitors, जो भी आपका गोल है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। हम अभी के लिए get more page likes रख लेते हैं, save। ओके, नाउ हाउ डू यू वांट योर एड टू लुक, ठीक है, हमको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है। सो डिस्क्रिप्शन में भी कुछ कैची डिस्क्रिप्शन लिखना है हमको, जिसको देखकर लोग आपके एड पर क्लिक करें। ओके, सो लर्न एंड पूरा डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। और इसकी हम अपने पेज पर ये शो करने वाले हैं, तो जिन लोगों का भी इंटरेस्ट इसमें होगा वो लोग इसको पेज को लाइक कर लेंगे, ठीक है। नाउ हियर वी हैव टू सेलेक्ट एन इमेज फॉर अवर एड, ठीक है, अभी मेरे पास इसके लिए इमेज नहीं है, तो वी कैन लीव इट, ठीक है। और इसकी जगह पर यदि हम किसी पोस्ट को यहाँ पर पोस्ट पर एड चलाना चाहते हैं, तो वी कैन यूज अ पोस्ट ऑल्सो, ठीक है। नाउ हियर द बटन लेबल इज अवेलेबल। तो अभी हमारा ऑप्शन जो है, हमने जो गोल सेलेक्ट किया है वो है टू इंक्रीज एंगेजमेंट ऑन द पेज, राइट, इसलिए लाइक पेज का ही ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। यदि आप कोई वेबसाइट ट्रैफिक या फिर कुछ और गोल क्रिएट करते, तो यहाँ पर और सारे ऑप्शंस आ सकते थे, लाइक वेबसाइट विजिट का ऑप्शन आ सकता था, कॉल्स का ऑप्शन आ सकता था, ठीक है। So from the button label you can select the button for your ad. Now uh, यदि हमारा एड जो है किसी पर्टिकुलर स्पेशल एड कैटेगरी में आता है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, लोन रिलेटेड, सॉरी हाउसिंग रिलेटेड, या फिर पॉलिटिक्स रिलेटेड, इलेक्शन रिलेटेड, कुछ स्पेशल कैटेगरी में आता है, तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बट हमारा एड किसी इसमें नहीं आता है, तो वी कैन लीव इट। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट एन ऑडियंस फॉर अवर एड, ठीक है, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी, तो हम यहाँ से एडिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, and we can select for whom we are running this ad, who is our target audience, if they are men or women or all. So I'm selecting all here. Age group we can select here, okay, like this, okay. So I select 13 to 65 plus, and locations we can select from here. So by default India is selected,
For example, I want to select certain places like Mumbai. I will select here Mumbai, India. Okay, what happened? Uh, okay, Mumbai, Maharashtra. Okay, where Gujarat, India. Okay, you can choose multiple locations for your ads, right? And now, if you want to target your audience on the basis of demographics, interest, and behavior, so that also you can do. Like interest में क्या आ जाएगा? कुकिंग से रिलेटेड यदि आता है फूड एंड ड्रिंक, राइट? सो कुकिंग, फूड एंड ड्रिंक, ये रहेगा मेरा रेसिपीज, फूड एंड ड्रिंक एंड बेकिंग एंड कुकिंग, राइट? सो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेबल होता है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आफ्टर दैट, इफ बिहेवियर अप्लाइज, बिहेवियर में तो इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, सो वी कैन लीव इट, ओनली इंटरेस्ट विल अप्लाई फॉर अस, ठीक है? इसके बाद वी हैव टू सेव दिस ऑडियंस। ओके, क्लिक ऑन सेव, save audience. Okay, after targeting the audience, we'll decide the budget for our ad. So यहाँ से बजट सेट कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 340 हमने रखा, तो जितना भी हम बजट सेट करेंगे उसके बेसिस पर जो एस्टिमेटेड अकाउंट की रीच है वो इंक्रीज और डिक्रीज हमको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है? आफ्टर दैट हमको अपने एड का जो भी प्लेसमेंट है वो सिलेक्ट करना है, राइट? तो यदि इंस्टाग्राम पर भी हमको ये एड रन करना है तो हमको इंस्टाग्राम कनेक्ट करना पड़ेगा अपने पेज से सबसे पहले, ठीक है? फिर इंस्टाग्राम पर भी हम अपना ऐड दिखा सकते हैं, फेसबुक पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पर रिकमेंडेड है, योर एड विल बी शोन ऑन फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड मेटा ऑडियंस नेटवर्क, राइट? इसके बाद वी हैव टू ऐड फंड्स टू अवर एड, ठीक है? तो आप कुछ भी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड फंड्स कर सकते हैं। ऐड फंड्स पर क्लिक करना है और कोई भी चीज़ आपको यूज़ करके यहाँ पर मेथड यूज़ करके आप अपना जो फंड है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है? दिस इज मेटा पिक्सल्स। मेटा पिक्सल्स आर एक्चुअली यूज फॉर ट्रैकिंग द वेबसाइट, मतलब ट्रैफिक, ओके, थ्रू दी एड कैंपेन, ठीक है? जहाँ पर भी हमको ट्रैफिक ऐड कर ट्रैक करना है, ठीक है? लाइक हम यदि वेबसाइट पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं अपने कैंपेन के थ्रू, तो वेबसाइट पर हमको ये कोड लगाना पड़ेगा। ऐप पर कर रहे हैं तो ऐप पर लगाना पड़ेगा। जहाँ पर भी हम ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं वहाँ पर हम पिक्सल एक कोड होता है बेसिकली, जिससे हम ट्रैफिक को मेजर करते हैं, जस्ट लाइक वी हैव यूज इन गूगल एड्स, ठीक है? इसके बाद that's it. After adding fund, you need to publish the ad, okay? And your ad will be reviewed by Facebook, ठीक है? जब फेसबुक रिव्यू कर लेगा, यदि कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं हो रहा होगा, तो यू विल गेट द मैसेज दैट योर एड इज एक्टिव, ठीक है? तो देखो यहाँ पर स्टेटस अभी रिव्यू में आ रहा है, जब एक्टिव हो जाएगा तो इधर एक्टिव लिख के आ जाएगा, एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन दैट योर एड इज एक्टिव नाउ, ठीक है? क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है?
सेम जैसे हमने ये नॉर्मल ऐड चलाया है, ऐसे ही दूसरे टाइप्स के एड्स भी रहेंगे। हमको अपनी सिर्फ डिटेल्स फिल इन करनी है, और उसके बाद जो ऑटोमेटेड ऐड है उस वो डायरेक्टली बनकर आ जाएगा, हमें उसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, और बूस्ट पोस्ट में भी सेम यही करना है, बस वहां पर कोई पोस्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, यदि कुछ भी इशू आता है आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है यूट्यूब। ओके, यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ एक बार। यूट्यूब चैनल है आप लोगों का ऑलरेडी किसी का? नहीं, ओके। राहुल, अच्छा है, ओके। कैसे क्रिएट करना है वो मैं बता देती हूँ एक बार आप लोगों को। सो youtube.com, ओके। आपको अपने जीमेल आईडी से लॉग इन करना है, एंड आफ्टर दैट you need to click on your profile picture here and click on create channel. Okay, create channel करने के बाद you can name your channel, any name you can give. Okay, and handle का जो नेम है, जो यूजर नेम आप दे रहे हैं, वो रेलेवेंट रखिएगा अपने कीवर्ड से। ठीक है, and you can put the logo of your business here। ठीक है, इसके बाद click on create channel। Now here you can give more details about your channel। uh, one second। यहाँ पर हम बेसिक दे सकते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में, या फिर चैनल के बारे में, क्या हम कैसा कंटेंट हम शेयर करने वाले, किस बारे में हमारा चैनल होगा, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पर देंगे। लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, लिंक्स, अपने सोशल मीडिया के लिंक्स, वेबसाइट के लिंक्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, राइट। सो ये आप लोगों को प्रोवाइड करना है। कौन सा पेज होता है ये? मैंने कस्टमाइजेशन, चैनल कस्टमाइजेशन पर, मैंने यहाँ पर जब कस्टमाइज चैनल पर क्लिक किया तो ये चैनल कस्टमाइजेशन का पेज ओपन हुआ। ठीक है, क्लियर? ओके। नाउ ठीक है, ये सब करने के बाद फिर हम वापस इसी पर आ जाते हैं। अब हमको यदि कंटेंट शेयर करना है इस पर, ठीक है, तो आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं कैनवा यूज करके, या कोई भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग का ऐप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है। कैनवा बहुत इजी है प्लेटफॉर्म, एक्सप्लोर कर सकते हैं आप लोग। वहाँ पर रेडी टेम्पलेट्स भी होते हैं, तो यू कैन अपलोड एनी। फॉर एग्जाम्पल एक हम अपलोड कर लेते हैं कैनवा। ठीक है, अभी हमको वीडियोस चाहिए। ये कैनवा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वीडियोस पर जाते हैं हम लोग। वीडियोस में फॉर एग्जांपल हमको यूट्यूब शॉर्ट्स चाहिए, राइट।
तो हम यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट्स जो भी हमें क्रिएट करना है यहाँ पर अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स उसके डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट उसके लिए, तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ से डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो कोई भी एक अभी के लिए, जैसे कि ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप जो भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं उसको अपने कीवर्ड के नाम से सेव कीजिए। जो भी आपका टाइटल है या कीवर्ड है जिसके बारे में आपने वीडियो बनाया है, मेक श्योर यू रीनेम द फाइल विद द नेम ऑफ योर कीवर्ड। ठीक है, क्लिक ऑन क्रिएट, सॉरी, फॉर अपलोडिंग वीडियो, जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट एंड अपलोड वीडियो। ठीक है, सेलेक्ट फाइल, जैसे वो हुआ है हुआ नहीं है, ओके, डन। अभी फिर से कंटिन्यू करते हैं एंड create, upload videos, select files, untitled designs। अभी मैंने इसको रीनेम नहीं किया है, बट यू हैव टू रीनेम इट, राइट। फाइल अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद टाइटल इज रिक्वायर्ड अबाउट क्या था वीडियो, ओके, सो इट इज अबाउट ब्यूटीफुल सनसेट। ओके, आपको अपना कीवर्ड यहाँ पर लिखना है टाइटल में, ओके, एंड यू हैव टू गिव अ डिस्क्रिप्शन। 5000 कैरेक्टर लिमिट है यहाँ पर, आप सॉरी 5000 वर्ड्स है यहाँ पर। आप एक जैसे अपना ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखते हो अपनी वेबसाइट पर, वैसे आप एक ऑप्टिमाइज कंटेंट आपको यहाँ पर लिखना है। लिंक्स ऐड करने हैं, आपके वेबसाइट का लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हो, सोशल मीडिया लिंक से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो एक ऑप्टिमाइज कंटेंट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर देना है। थंबनेल यू कैन ऐड, ठीक है। थंबनेल अगेन आपको अलग से पिक्चर्स आप क्रिएट कर सकते हो। शॉर्ट्स में तो आप यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द वीडियो इटसेल्फ, बट जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपको अलग से थंबनेल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो थंबनेल के लिए भी कैनवा पर अवेलेबल है, आप क्रिएट कर सकते हो। प्लेलिस्ट किस लिए होता है, जब आपके बहुत सारे वीडियोस आप अपलोड कर देते हो और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, तो आप प्लेलिस्ट बना सकते हो उसके लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मेरा चैनल है, और एसईओ है मेरा, एसईएम है, गूगल एनालिटिक्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज यदि है मेरे टॉपिक्स पर, तो मैं हर टॉपिक के लिए एक एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकती हूँ, ताकि जब भी कोई विजिटर मेरे अकाउंट पर आता है तो उन्हें मेरा कंटेंट सर्च करने में आसानी रहे। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू डिफाइन, यदि कोई एज रेस्ट्रिक्शन है आपके वीडियो के लिए तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एंड ठीक है, इसके बाद आप टैग्स ऐड करने हैं, अपने जो भी रिलेटेड हैशटैग्स या आपके वीडियो से रिलेटेड वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन, यदि कोई कैप्शंस आप ऐड करना चाहते हो, कोई वीडियो कंटेंट है आपका जिसमें कुछ आपने एक्सप्लेन किया है, तो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के विजिटर्स को भी यदि टारगेट करना चाहते हो तो आप कैप्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, आपका जो कंटेंट है वो किस कैटेगरी में आता है। एंड कमेंटिंग ऑन, यदि रखना चाहते हो तो ऑन रख दो या तो फिर ऑफ रख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब यदि कोई रिलेटेड वीडियो है आपके चैनल पर, कोई ऐसा वीडियो अवेलेबल है जो इससे रिलेटेड है,
तो आप वो इसको ऐड कर सकते हो, या फिर कोई दूसरे चैनल को भी आप यदि बैकलिंक प्रोवाइड करना चाहते हो यहाँ से, तो आप वो इधर ऐड कर सकते हो। ठीक है, सबटाइटल से यदि ऐड करना है तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हो। कॉपीराइट इश्यूज नहीं है। नाउ जस्ट सेव एंड पब्लिश। ठीक है, तो यदि स्केड्यूल करना है तो स्केड्यूल भी कर सकते हो, ये ऑप्शन है स्केड्यूल करने का। अदरवाइज यू कैन मेक इट पब्लिक। ठीक है, पब्लिक हो गया और पब्लिश। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ चैनल एंड अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप यहाँ से लिंक कॉपी करके शेयर कर सकते हो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, कुछ पूछना है इससे रिलेटेड किसी को भी, कोई डाउट? नहीं? ओके, नाउ नेक्स्ट इज ईमेल मार्केटिंग। ओके, सो ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है, हमारे पास एक फ्री टूल है, कई सारे पेड और फ्री टूल्स अवेलेबल है। बेसिकली ईमेल मार्केटिंग होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। email marketing is कि when we send email campaigns या emails to our targeted audience। ठीक है, ऑफर्स के लिए हो सकता है, न्यूज़लेटर्स हो सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। ठीक है, तो ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं और क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है वो हम पहले समझ लेते हैं। एक फ्री टूल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। सो बेसिकली सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑडियंस यहाँ पर कैसे हम डिसाइड करते हैं हमारी ईमेल मार्केटिंग के लिए। सो डिफरेंट जो कस्टमर जर्नी है या कंज्यूमर जर्नी है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट टाइप्स के ईमेल्स हम सेंड करते हैं अपने जो भी हमारे टारगेटेड ऑडियंस रहती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई नया विजिटर आया है हमारी वेबसाइट पर तो हम उसको वेलकम ईमेल सेंड कर सकते हैं, राइट। कोई कोई किसी ने कुछ कार्ट में ऐड किया बट परचेज नहीं किया, तो हम उसको अबेंडन कार्ट का मेल कर सकते हैं, जस्ट टू रिमाइंड देम कि समथिंग इज वेटिंग फॉर यू इन द कार्ट टू परचेज, राइट। तो अलग अलग स्टेप्स जो होती है कंज्यूमर की या विजिटर की, उस पर डिफरेंट टाइप्स के ईमेल्स हमें सेंड करने होते हैं कस्टमर को, राइट। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे और क्या क्या कैसे ईमेल मार्केटिंग टूल्स जो है वो हमको हेल्प कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती है इससे रिलेटेड। लाइक ऑटोमेशन जो होता है, ऑटोमेशन में क्या होगा कि हमें सिर्फ ऑडियंस का लिस्ट प्रिपेयर करना है कि कौन से कौन से टाइप के ईमेल के लिए हमको कौन से ऑडियंस को रखना है। ठीक है, सिर्फ हमको ऑडियंस डिफाइन करनी है उस कैटेगरी में, एंड इट विल इट विल वर्क बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो ये होता है ऑटोमेशन, राइट। हमको अलग से एक एक ऑडियंस को ये सेंड करने की जरूरत नहीं है ईमेल। जब हम ऑटोमेशन में इसको डाल देंगे, मतलब कोई भी टूल यूज करके हम ऑटोमेशन में ऑडियंस के लिस्ट ऐड कर देंगे, तो अपने आप वो ईमेल ट्रिगर हो जाएगा जब भी कोई नया विजिटर आएगा। जैसे कोई भी नया विजिटर वेबसाइट पर है तो उसको वेलकम ईमेल ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशंस कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशंस होते हैं। ठीक है, वेबसाइट से हम अपने जो भी ईमेल मार्केटिंग टूल हम यूज कर रहे हैं उसको हमको इंटीग्रेट करना होता है, जो भी हमको टास्क परफॉर्म करने हैं, राइट। यदि हमको सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स इंक्लूड करना है तो सोशल मीडिया से हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस टूल का। वेबसाइट के थ्रू यदि हमको न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर्स को सेंड करना है तो हमको वर्डप्रेस से या अपनी जो वेबसाइट है उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब कुछ टर्म्स होते हैं जैसे बाउंस रेट हो गया। ठीक है, तो बाउंस रेट मतलब कि आपने जब भी अपने टारगेट ऑडियंस को ईमेल भेजा और उन्होंने कोई उस पर रेस्पॉन्स नहीं हुआ, ठीक है, मतलब कि उन्होंने ओपन नहीं किया आपका ईमेल, तो वो बाउंस रेट हो गया, सॉरी,
ओपन नहीं किया या फिर उसको सेंड नहीं हुआ, मतलब डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है, सेंड नहीं हुआ, किसी भी वजह से, या तो गलत है ईमेल एड्रेस, या जो भी रीजन हो सकता है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यदि सेंड नहीं होता, डिलीवर नहीं होता ईमेल, तो उसको बाउंस रेट बोला जाता है, ठीक है। यदि क्लिक थ्रू रेट क्या है, यदि उन्होंने ओपन किया या नहीं किया, जैसे आपने 10 ईमेल सेंड किया, उसमें से कितने मेल्स ओपन हुए, ठीक है, वो क्लिक थ्रू रेट कहलाएगा, जस्ट लाइक the terms we have used in search engine marketing, right? फिर ओपन रेट, कितने ओपन हुए हैं, सक्सेसफुली डिलीवर हुए और ओपन भी हुए, वो ओपन रेट हो गया आपके ईमेल्स का, ठीक है। एंड सेगमेंट्स क्या होते हैं, सेगमेंट्स और टैग्स दो टर्म्स है जो हम ईमेल मार्केटिंग में यूज करते हैं। ये कैटेगरीज होती है बेसिकली, सेगमेंट्स जो है वो ब्रॉड कैटेगरीज होती है ऑडियंस को डिफाइन करने की, कौन से ऑडियंस कौन से टाइप के ऑटोमेशन में फिट होगी, ठीक है। और जैसे कि किसको वेलकम ईमेल जाना है, किसको अबेंडन कार्ड ईमेल जाना है, किसको न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर्स वाला ऐड जाना है, ठीक है, सॉरी ईमेल जाना है, उसके हिसाब से सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और टैग्स जो होते हैं, टैग्स फर्दर कैटेगरी होती है, ठीक है, हमें और स्पेसिफाइड वे में यदि ऑडियंस को कैटेगराइज करना है तो उसके लिए हम टैग्स यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक टूल आप लोगों को बता देती हूँ। बेंचमार्क ईमेल डॉट कॉम करके एक ये वेबसाइट है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों को। अपने जीमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं, फ्री में भी अवेलेबल है और पेड वर्जन भी इसका अवेलेबल है। फ्री में थोड़े लिमिटेशंस रहेंगे, पेड वर्जन में आपके पास फुल एक्सेस रहेगा। तो ओके, अभी स्क्रीन विजिबल है मेरी? हेलो, स्क्रीन विजिबल है? यस और नो? श्वेता, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? ओके, ठीक है। सो ये बेंचमार्क ईमेल डॉट कॉम करके वेबसाइट है। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ आप लोगों को चैट बॉक्स में। अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ईमेल्स यदि आप क्रिएट करना चाहते हो किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो आप कर सकते हैं। क्रिएट न्यू ईमेल पर क्लिक करना है। अब आपको कैसा ईमेल चाहिए, रेगुलर ईमेल चाहिए, स्मार्ट डिजाइन ईमेल चाहिए, आरएसएस ईमेल चाहिए। आरएसएस किस लिए होता है, जो आपके न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको सेंड करने के लिए होता है, ठीक है। अभी के लिए हम स्मार्ट डिजाइन ईमेल देख लेते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। स्मार्ट डिजाइन में विल हैव टू फिल द डिटेल्स अबाउट आवर बिजनेस एंड किस बारे में हमको ये ईमेल क्रिएट करना है, एंड इट विल क्रिएट एन ईमेल टेम्पलेट फॉर अस, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ ईमेल डू यू वांट टू क्रिएट, अभी के लिए हम कोई प्रमोशनल ईमेल लेते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू, इट विल क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर अस। यहाँ से हम आइडिया लेकर खुद का ईमेल, खुद का डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमको अपने जो भी लोगो है वो यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। ये लोगो यूज कर लिया हमने। अभी कंटिन्यू, इमेजेस ऐड कर सकते हैं हम अपने वेबसाइट के लिए, या फिर सॉरी अपने ईमेल के लिए। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं कोई भी रैंडम इमेजेस सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अप टू 3 images we can
select here. आफ्टर दैट कंटिन्यू. नाउ हम कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ये जो भी ईमेल कैंपेन है हमारा. फॉर एग्जांपल हमने पिंक कलर ले लिया. ठीक है, सेव. ओके, तो ये ब्लैक की जगह पर पिंक आ गया. अब मान लो मुझे यहाँ पर ठीक है, और कुछ कलर मान लो ये ग्रीन चाहिए. सेव कर दिया. ठीक है, तो ये डिफरेंस ये आ जाएगा ऑटोमेटिक. ठीक है, अब ये तीन यहाँ पर अवेलेबल है. इन तीनों में से कौन सा आपको चाहिए टेम्पलेट वो आप सेलेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने अभी के लिए ये वाला सेलेक्ट कर लिया. ओके, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है. इसको मैं किसी भी ब्लॉग को एडिट कर सकती हूँ. यहाँ पर डिलीट करना है, एडिट करना है, सारी चीज़ें अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल इसको एडिट करना है. जैसे ही उस ब्लॉग पर क्लिक करेंगे वहाँ पर जो जो भी एडिटेबल चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ जाएगी. ठीक है, लाइक स्टाइलिंग हमको करना है या अलाइनमेंट चेंज करना है, कोई लिंक ऐड करनी है, वो भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, लिंक टाइप, लिंक टेक्स्ट, लिंक यूआरएल जो भी आपको लिखना है. फॉर एग्जांपल अच्छा इसमें इमेज है. लिंक टेक्स्ट बाय नाउ लिख देते हैं हम अभी के लिए. ठीक है, और लिंक यूआरएल यहाँ पर हमको देना पड़ेगा हमारी वेबसाइट का. जो भी बाय नाउ ऑप्शन है वहाँ का लिंक यहाँ पर हम दे सकते हैं. रिमूव लिंक करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं. ठीक है, अभी अगेन यदि ये वाला रिमूव करना है, रिमूव कर दिया. ठीक है, ऐसे ही कोई भी ब्लॉक में चेंजेस करने हैं वो हम कर सकते हैं. सेव एंड क्लोज. ठीक है, ये कंटेंट यदि हमको चेंज करना है हम कर सकते हैं. ये वेबसाइट से उठाकर इसने ऑटोमेटिक ले लिया. यहाँ पर हमारी वेबसाइट का नाम आ जाएगा. हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हम यहाँ पर डाल सकते हैं. ठीक है, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है. डिज़ाइन कंप्लीट है. ठीक है, इसका प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं. टेस्ट ईमेल भी सेंड करके देख सकते हैं अपनी ईमेल आईडी पर. ओके, किसको ये सेंड करना है यहाँ से कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करने हैं हमको. और कहाँ से मतलब सेंडर कौन है उसका ईमेल यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, एंड सब्जेक्ट लाइन जो भी है हमारे ऐड की वो यहाँ से सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं हम. और प्रीव्यू टेक्स्ट यहाँ से हो जाएगा. इसके बाद बस हमको ये सारी जब डिटेल्स फिल कर देंगे सेंड इमीडिएटली भी कर सकते हैं और स्केड्यूल भी कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी कैसे इसको यूज करना है. फ्री टूल है, कुछ लिमिटेशंस रहेंगी बट स्टिल फ्री में काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर जो हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी, किसी को भी कुछ पूछना है. सब क्लियर है. यस श्वेता, पूछिए. ऐप पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक ईमेल सेंड हो जाए. ऐड पर क्लिक करें. ऐड पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक ईमेल सेंड हो जाए. कैसा ईमेल? हाँ, वो आप लिंक वहां पर दे सकते हो कि कहाँ पर आपको देना है. ये ऐड आपको मतलब जो ईमेल कैंपेन है वो किस स्टेज पर आपको देना है वो तो हो जाएगा. बट किस टाइप का ईमेल आपको सेंड करना है, मतलब ऐड पर क्लिक करें तो हम उसको ईमेल क्यों सेंड करेंगे, कैसा ईमेल सेंड करना है.
कोई आपकी एड पर क्लिक करेगा तो आप कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको क्लिक करवाओगे ना। आप उसको एड आप थोड़ा सा स्पेसिफाई करोगे तो मैं बता पाऊंगी। व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज सेंड हो जाए। अच्छा, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज सेंड हो जाए तो वो उसके लिए जैसे आपने फेसबुक पर किया था तो फेसबुक पर व्हाट्सएप इंटीग्रेट करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, मैं बता देती हूँ वो भी एक बार आपको। वन सेकेंड। ऑटोमेटेड ऐड, या फिर हम डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप को ऐड कर देते हैं तो वहां पर हमको व्हाट्सएप पर ही मैसेज आ जाता है डायरेक्टली। कैसे होगा ये, एक ये वाला ऐड चलाकर देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स। उसके लिए आपको अपने फेसबुक पर अपना व्हाट्सएप जो बिजनेस है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। वो एक कोड के थ्रू वेरीफाई करेगा और आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर डायरेक्टली जैसे ही आपको फेसबुक पर फेसबुक ऐड पर कोई क्लिक करेगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, like you have to fill in all the details required here. Do you want people to come to your business? यदि आपका कोई ऑफिस लोकेशन है जहाँ पर आप विजिट करवाना चाहते हो तो यस करो, अदरवाइज नो। ठीक है, एंड नेक्स्ट, डू यू हैव अ वेबसाइट? यस। नेक्स्ट, डू पीपल बाय प्रोडक्ट्स ऑन योर वेबसाइट? नो। यदि जो एप्लीकेबल है आप अपने वेबसाइट या अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कीजिएगा। डू पीपल बुक अपॉइंटमेंट्स ऑन योर वेबसाइट? नो। Do you get leads through your website? Yes. Do you want people to contact you? अब आपका ऑप्शन ये वाला है कि आप चाहते हो कि जैसे ऐड पर क्लिक हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाए, राइट? तो डू यू वांट पीपल टू contact you? Yes. नेक्स्ट कीजिए यहाँ पर। एंड हाउ डू यू वांट पीपल टू contact you? यहाँ पर दे मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, यहाँ ये वाला आपको क्लिक करना है। तो फिर आपको यहाँ पर अपना व्हाट्सएप बिजनेस का जो नंबर है वो ऐड करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन कोड आएगा, आप बस उस कोड को आपको एंटर करना है। आपका व्हाट्सएप फेसबुक से कनेक्ट हो जाएगा और फिर आप जैसे ही वो ऐड देखेगा, जो भी वो मैसेज करेगा वो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पर आएगा। ठीक है, क्लियर है? अभी के लिए मैं ये वाला हटा देती हूँ तो आपको ये पूरा पता कैसे होगा। ठीक है, नाउ वेयर इज योर ऑडियंस लोकेटेड? अभी के लिए लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र सेलेक्ट किया हुआ है। व्हाट आर सम टॉपिक्स दैट योर ऑडियंस माइट लाइक? तो जो भी उनका इंटरेस्ट का टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग है। ओके, डिजिटल मार्केटिंग, तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पर हमको अपने ऐड के लिए इमेजेस देनी है तो हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं। जो भी इमेजेस हमको ऐड में दिखानी है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट, जब भी इमेजेस ऐड कर रहे हैं ट्राई कीजिए कि उसमें टेक्स्ट कम हो और इमेज ज़्यादा हो। ठीक है, पिक्चर फॉर्म ज़्यादा हो इमेज में। ठीक है, आफ्टर दैट जो हमने मैसेजेस का गोल सिलेक्ट किया था उसके बेसिस पर इसने रिकमेंड किया है। यदि हमको लीड्स चाहिए या ट्रैफिक चाहिए तो हम वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने ऐड के लिए इमेजेस ऐड कर देंगे। देन वी हैव, अब और कुछ भी हमको डिफाइन नहीं करना, बाकी सब फेसबुक ने खुद से डिज़ाइन कर दिया है हमारे लिए ऐड। हमको बस अपना बजट सेट करना है। ड्यूरेशन भी यहाँ पर कंटिन्यूस है, बीच में कभी हमको पॉज करना है ऐड तो हम कर सकते हैं। ठीक है, यदि स्पेशल कैटेगरी में ऐड होता है तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ऑडियंस हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, राइट? तो हमको अभी अगेन डिफाइन करने की यहाँ पर नहीं है। ओके, देन प्लेसमेंट्स हमको डिसाइड करने हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, यदि सभी पर दिखाना है तो सभी को चेक कर दो, अदरवाइज सिर्फ फेसबुक पर दिखाना है तो आप इन दोनों को अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। पेमेंट ऐड करना है एंड यू हैव टू पब्लिश योर ऐड। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट?
हाँ, जब हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा हमारे पास प्रमोशनल ईमेल्स आने लगते हैं, राइट? कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट खरीदा खरीदा तो एक फीडबैक ईमेल आता है हमारे पास, राइट? तो अब जब आप पेड टूल खरीद लेते हो, तो पेड टूल खरीदने के बाद जैसे अभी हमने प्रमोशनल ईमेल बनाया, ठीक है? तो प्रमोशनल ईमेल क्या है कि यदि उनको कुछ नया प्रमोट करना होता है तो हम प्रमोशनल ईमेल सेंड करते हैं, राइट? यदि किसी ने कोई परचेज कर लिया है, उस केस में हम फीडबैक ईमेल बनाएंगे, ठीक है? एक बार ट्राई कर लेते हैं फीडबैक ईमेल। इसमें एक्चुअली फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है वो फीडबैक ईमेल, हमको स्क्रैच से बनाना पड़ेगा कि हमको क्या फीडबैक चाहिए उनका, ठीक है? तो स्क्रैच से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उससे बना सकते हैं। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ वापस से। ये वाला जो था हमारा बैक टू ईमेल्स जाते हैं हम, और यहाँ से क्रिएट न्यू ईमेल। अब यहाँ पर रेगुलर ईमेल में हम चले जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर ले लेते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अब ईमेल क्या यहाँ पर फीडबैक ईमेल आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट। अब आपको जो भी ईमेल में चाहिए, ठीक है, वो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। लाइक हमको स्टार रेटिंग्स चाहिए, चाहिए, ईमेल्स चाहिए। ये टेम्पलेट्स यहाँ पर अवेलेबल है, टेम्पलेट्स से भी हम यूज कर सकते हैं यदि यहाँ पर मिल जाता है हमको। अदरवाइज हम स्क्रैच से खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, बार बार नहीं करना पड़े, बस हमने जैसे यहाँ पर वो, वही मैं बता रही हूँ कि पेड टूल में होता है। फ्री टूल में क्या होगा कि हमको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और बल्क में उस लिस्ट को हम सेंड कर सकते हैं। ये अब बार बार नहीं बनाना पड़े और वो ऑटोमेटिक चले जाए, उसके लिए हमको पेड टूल परचेस करना पड़ेगा। जो आप बोल रहे हो कि ऑटोमेटिक सारे कस्टमर को सेंड हो जाए ईमेल और हमको ये करना नहीं पड़े, तो उसके लिए हमको पेड टूल परचेस करना पड़ेगा, ठीक है? यदि हम पेड टूल परचेस करते हैं तो हमको सिर्फ ऑडियंस की लिस्ट तो हमको फिर भी ऐड करनी पड़ेगी वहां पर। ऑडियंस की लिस्ट ऐड कर दी, फिर वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। हम पर्सनलाइज भी कर सकते हैं उसको, ठीक है, कि जिसका नाम है उसके नाम से वो ईमेल चला जाए, ठीक है? मतलब कि हाय, जिसका भी नाम है, हाय श्वेता, ठीक है, ऐसा करके ईमेल आ जाए तो वो पर्सनलाइज ईमेल भी हो जाएगा। ओके, इसके अलावा और कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है, कोई भी क्वेरी? हमारा पूरा कोर्स आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो किसी को भी कुछ भी पूछना है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हो। मेल चिम्प अच्छा टूल है ईमेल मार्केटिंग के लिए, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा और कुछ? नो डाउट्स, सब कुछ क्लियर है, ठीक है? सो हम सेशन वाइंड अप करते हैं, ठीक है? यदि आप लोग को कुछ भी लगता है, कुछ पूछना है, क्वेरी है, तो मेल चिम्प, एक मिनट मैं चैट बॉक्स में टाइप कर देती हूँ और लिंक भी शेयर कर देती हूँ उसका। ये जो फ्री टूल था वो, उसका भी मैंने आपको शेयर किया है पहले, बेंचमार्क ईमेल डॉट कॉम, और ये मेल चिम डॉट कॉम का भी मैंने आपको शेयर किया है चैट बॉक्स में, ठीक है? ये आप देख सकते हो। इसके अलावा और कुछ पूछना है आप लोग को? ओके, ठीक है। सो सेशन वाइंड अप करते हैं हम यहीं पर, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।